Dear learners, today I have a special video for class 10th students. Important grammar for board examination. And this video is very special, very important for you guys for the next examination. So please watch till the end. Now the first question. We dash to serve our nation. We have three options here and answer will be ought because ought to is used for moral duties. Serving the nation is a duty, not permission. So answer will be we ought to serve our nation. Now the next question. Question number 2. Dash I come in the classroom, sir. And we have three options here. Answer will be may because may is used for polite permission and can shows ability, not politeness. So answer will be may I come in the classroom, sir? Now the question number 3rd. Here they dash football in the evening. You have three options here. Plays, play and playing. Answer will be play because this is present simple tense and they is plural. So best form of the verb is used here. They play football in the evening will be the answer. Now the next question. I have been here dash Monday. We have three options here and answer will be since because since is used with a point of time and for is used with a period of time. So answer will be I have been here since Monday. Okay, now the next question. Question number 5. I am not afraid dash death. We have three options here on, off and off. The answer will be off because this is the correct preposition used after afraid. So answer will be I am not afraid of death. Now question number 6. Look dash you leap. And we have three options here. The right answer will be before because it is a proverb and simple सा meaning है think before acting. The answer will be look before you leap. Now the question number next. Question number 7. He has dash 1 rupee note and three options here A, N or the. The answer will be A because 1 starts with W. That means the consonant sound. So article A is used here, not N. The answer will be he has a 1 rupee note. Now the next question. Question number 8. They did their work. The instruction is make negative. So answer will be they did not do their work because here past simple tense and we will use did not plus base verb for making negatives of past simple tense and did is verb here so it will be changed into do. So the answer will be they did not do their work. This is very important question. Please इसे याद रखिएगा. Now next question. Question number 9. My mother is cooking food. It is very easy. Is my mother cooking food? Then mark a question mark. Helping verb is comes before the subject. This is the simple rule for making interrogatives. Now the next question. Question number 10. Swimming is a good exercise. Begin with it. So answer will be it is a good exercise to swim. The rules here gerund will follow infinitive structure. This is very common exam pattern. So answer will be it is a good exercise to swim. Now question number 11. Preeti said Ishita is working.
चेंज द नरेशन। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। प्रीति सेड दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड इशिता इज वर्किंग, it is reported speech. So now answer will be Preeti said that Ishita was working. सिंपल एक्सप्लेनेशन है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में दे रखी हो तो टेंस में चेंज होता है, ठीक है। देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क लगती है और इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क को रिमूव किया जाता है और दैट से जोड़ दिया जाता है। इसलिए आपका आंसर होगा प्रीति सेड दैट इशिता वॉज वर्किंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। सो दैट का आपको यहां पर यूज करना है। वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, वेरी को रिप्लेस कर दीजिए सो से और दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर दीजिए दैट की हेल्प से। सो द आंसर विल बी द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। यहां पर आपको अनलेस का प्रयोग करना है। सो द आंसर विल बी अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे फर्स्ट थिंग तो यह कि इफ़ को रिप्लेस कर दीजिए अनलेस से। दूसरी बात यह कि अनलेस खुद नेगेटिव है तो इसलिए आप लोगों को सेकेंड सेंटेंस को भी नेगेटिव बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। शी वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, नाउ चेंज द वॉइस। सिंपल रूल्स आपको याद रखना है कि जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। साथ ही में प्रोनाउन चेंज याद रखना है और टेंस टेबल को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर दिया गया सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको दिया है, जहाँ पर वॉज वर एक्टिव वॉइस में यूज़ की जाती है और पैसिव वॉइस में वॉज वर के साथ में बीइंग प्लस कर दिया जाता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोला जाता है। तो द आंसर विल बी अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जुलाई कम्स डैश अगस्त। नाउ वी हैव 3 ऑप्शंस हियर, बिफोर, आफ्टर एंड विद। सिंपल सा लॉजिक है, जुलाई कम्स अर्लियर देन अगस्त, सो द आंसर विल बी बिफोर। जुलाई कम्स बिफोर अगस्त। क्वेश्चन नंबर 16। अशोका वॉज वन ऑफ डैश ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। वी हैव 3 ऑप्शंस हियर, ए, एन और द। वेरी सिंपल, सुपरलेटिव डिग्रीज है और उसके पहले आपको द का प्रयोग करना है। तो आंसर विल बी अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। वी हैव 3 ऑप्शंस हियर, मस्ट, शुड एंड माइट। सबसे पहली बात तो यह कि ट्रैफिक रूल्स आर कंपल्सरी। सेकेंड थिंग इज, जहां भी कंपल्शन दिखे वहां पर आपको मस्ट का यूज करना है। सो द आंसर विल बी वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। ही डाइड डैश कैंसर। ऑप्शंस आर ऑफ एंड ऑन। द आंसर विल बी रूल ऑफ डाई ऑफ एनी डिजीज, die by accident or weapon. So now cancer is a disease, so the answer will be of. That means disease के पहले of का प्रयोग आपको करना है। So the answer will be he died of cancer. Now the question number next 19. Ritu has dash friends and you have 3 options here, much, many or any. It is very simple rule here.
countable plus plural. Countable plural leads to many. So the answer will be many. Countable nouns के पहले many का यूज किया जाता है. So the answer will be Ritu has many friends. Now the question number next. She dash a song. 3 options here: singing, sings or sung. Subject is singular. Then this is present simple rule कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस ई एस का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है. So the answer will be sings. She sings a song. Question number 21. Dash you live long. We have 3 options here. Very simple. Wish या blessings के पहले may का प्रयोग किया जाता है. So answer will be may you live long. Now the question number next. 22. He is so fat that he cannot run fast. यहाँ पर टू का यूज़ हमें करना है. तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट. और रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा? सो दैट को रिप्लेस करना है टू से. तो योर आंसर विल बी ही इज टू फैट. सो को रिप्लेस कर दीजिए टू से और दैट से लेकर कैन नॉट तक को रिप्लेस कर दीजिए TO2 से. सो द आंसर विल बी ही इज too fat to run fast. Now the next question. Question number 23. The boy is my nephew. He is wearing a blue shirt. यहाँ पर आपको who का प्रयोग करना है और दोनों सेंटेंसेस को मर्ज करना है. आप सभी जानते हैं फर्स्ट थिंग तो ये कि दोनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है. तो कॉमन है द बॉय. स्टेप नंबर 2 में ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है. पर्सन के बारे में है तो सिंपल सी बात है कि हु का यूज़ आपको करना है यहाँ पे. सो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर होगा द बॉय हु इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज़ माई नेफ्यू. सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को याद रखना होगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 24. अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन. यहाँ पर आपको इफ़ का प्रयोग करना है. आप सभी जानते हैं कि अनलेस को रिप्लेस करते हैं हम लोग हमेशा किससे? इफ़ से. सो सबसे फर्स्ट थिंग तो ये कि अनलेस को रिप्लेस कर दीजिए इफ़ से. पर ध्यान रखिए कि अनलेस जो है वह नेगेटिव होता है. हमें पहले सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होगा. सो द आंसर विल बी इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. पुलिस अरेस्टेड द थीफ. अभी नाउ मेक नेगेटिव. आइडेंटिफाई द टेंस. फर्स्ट थिंग तो टेंस सिंपल है, पास्ट सिंपल का टेंस है क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है. तो पास्ट सिंपल अगर होता है और अगर उसे नेगेटिव बनाना होता है तो वेरी सिंपल स्ट्रक्चर डिड नॉट के साथ में वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करते हैं. तो आंसर क्या होना चाहिए? पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ. यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा, जब आपने पास्ट सिंपल में नेगेटिव बनाना है तो वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में आ जाएगी और अफर्मेटिव में यही वर्ब सेकेंड फॉर्म में हमें मिलती है. तो यह रूल जरूर याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 26. राम राइट्स अ लेटर. चेंज द वॉइस. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. अ लेटर इज अ ऑब्जेक्ट हियर and the subject is Ram. So it is very easy. Writes will become is written because this is present simple tense. Change the voice. Object को subject और subject को object बना देते हैं. So your answer will be a letter is written by Ram. Now the next question. Question number 27. Swimming is a good habit. Begin with it. So identify gerund structure. Then second thing is it plus infinitive. दोनों रूल्स को ध्यान रखना है और आंसर को क्रिएट करना है. It is a good habit to swim. Now the next question. Question number 28. So now
ममता गोज टू स्कूल एवरी डे। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंपल सा रूल है, यूज डज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। सो आंसर विल बी डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 29. Sita is dash than any other girl. Options are intelligent, more intelligent और most intelligent. सबसे फर्स्ट थिंग तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि here the phrase than any other girl shows comparison. Number second, decide degree of comparison. So comparison between one person and all other person. So it will be comparative degree. Number third is choose correct form. Comparative of intelligent equal to more intelligent. So the answer will be more intelligent. Sita is more intelligent than any other girl. ध्यान रखें बोर्ड स्टूडेंट्स, देन इक्वल टू कंपैरेटिव डिग्री, सिंपल सा रूल है, भूलना नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30. I dash this book yesterday. Here we have three options: read, reading, reads. सिंपल सी बात है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। तो सिंपल सी बात है कि yesterday is clearly shows past time, so identify the tense first and your answer will be read. So ध्यान रखें, I read this book yesterday. Question number 31. Dash you work hard, you will fail. We have three options here: if, as long as and unless. सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको unless का यूज़ करना है, बिकॉज सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है? इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, और आप सभी जानते हैं कि unless खुद नेगेटिव है, तो आंसर क्या होना चाहिए? unless you work hard you will fail. Okay, now the next question, question number 32. Your father is seriously ill, you dash go home. Dear students, यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, मैं तीनों को क्लियर कर देता हूँ। शूड का यूज़ एडवाइस के लिए किया जाता है, अगर कंपल्शन हो तो मस्ट का यूज़ किया जाता है अनिवार्यता को शो करने के लिए, और मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्यों को शो करने के लिए ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक एडवाइस दी जा रही है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? शुड. सो योर आंसर विल बी शुड. यू शुड गो home. Okay, now the next question, question number 33. My father is a dash teacher. We have three options here: retired, retire and retiring. So the right answer will be my father is a retired teacher. Okay, so now the question number next 34. How dash time is left? We have three options here: many, any और much. सिंपल सी बात है, टाइम है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और आप सभी जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच का प्रयोग किया जाता है। सो द आंसर विल बी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. ही एक्सक्लेम्ड वॉट डैश ब्यूटीफुल फ्लावर. तीन आर्टिकल्स दे रखे हैं, ए, द और एन. सिंपल सी बात है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से फ्लावर, तो रूल नंबर 2 क्या होगा? एक तो कॉन्सोनेंट साउंड को ध्यान देना है, तो ब्यूटीफुल ये जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम हमेशा आर्टिकल ए का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो वेरी सिंपल सेंटेंस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो यहाँ पर जब भी हम प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू डस का यूज़ करते हैं, और स्ट्रक्चर बहुत इजी हो जाता है, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब एंड देन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो आंसर क्या होना चाहिए? आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। यहाँ पर आपको एक बात खास तौर पर ध्यान रखना है कि यह जो डू दिया है, दिस इज वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, प्लीज इसे याद रखिएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी। बिगिन करना है इट के साथ। मैं इसे पहले भी समझा चुका हूं आपको कि इन्फिनेटिव अगर होता है तो इट प्लस इन्फिनेटिव बनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट इज ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। लेंचो वॉज अ पीजेंट। हु का यूज करना है आपको यहाँ पे। तो सिंपल सा रूल है। सबसे फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे लेंचो की बात हो रही है जो कि एक पर्सन है, और पर्सन के साथ हमेशा हु का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा आंसर होगा लेंचो हु वॉज अ पीजेंट कॉमा रोट अ लेटर टू गॉड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे आपको सो दैट का यूज करना है। सो दैट का यूज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th में हर साल पूछा जाता है। बहुत सिंपल है, गलती नहीं करना है, एक नंबर कट नहीं होना चाहिए। देखिए, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, सबसे फर्स्ट थिंग तो वेरी को रिप्लेस कर दो सो के साथ और दोनों सेंटेंसेस को दैट से जोड़ दो। तो आंसर कितना इजी है? माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ही नोज मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान लो। तो सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है मी। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। और आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आई एम नोन टू हिम। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं। अब इन्हें करना है हमें रीअरेंज। तो सबसे पहले 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना होगी। फर्स्ट थिंग इज फाइंड द सब्जेक्ट, सेकेंड थिंग इज वर्ब्स, एंड थर्ड थिंग इज प्लेस ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, फिर वर्ब क्या है और फिर ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ये रूल आप फॉलो करते हैं तो इजीली आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं और एक नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर आपका होगा सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42, हियर द क्वेश्चन इज वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। इसको करेक्ट करना है और रीराइट करना है, ठीक है। अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वी आर लिविंग इन दिस सिटी, यहीं से आप समझ लीजिए कि गलत हो गया है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गलत दी हुई है। आप सभी जानते हैं कि सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम यूज होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रहेगा। द आंसर विल बी वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, माई अंकल इज डैश MLA। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, A, N और द। आप सभी जानते हैं कि MLA का जो स्टार्टिंग साउंड है वो है M, तो वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड से पहले हम वैसे भी आप सभी जानते हैं N का यूज़ किया जाता है। तो आंसर विल बी माई अंकल इज एन MLA, और एब्रिएशन फॉर्म होने के कारण भी यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि N का यूज़ किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 44, यू डैश सिट हियर। यहाँ देखिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, डेयर, मे और शुड। मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ। मे का यूज़ परमिशन के लिए किया जाता है, शुड का यूज़ एडवाइस के लिए किया जाता है, और डेयर का यूज़ करेज को शो करने के लिए किया जाता है। तो आपको यहाँ पर यूज़ करना है मे का। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यू मे सीट हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, डैश डॉग सेल्डम बाइट। यहाँ पर वी हैव 3 ऑप्शंस, बार्किंग, बार्क्स और बार्क। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है। तो आंसर क्या होना चाहिए?
कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46, हेमा हैज बीन डांसिंग डैश मॉर्निंग। वी हैव 3 ऑप्शंस हियर, सिंस, फॉर और फ्रॉम। तो आप सभी जानते हैं, पहले भी बता चुका हूं, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, हेमा हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द सर्वेंट डिड नॉट मेक डैश टी। वी हैव 3 ऑप्शंस हियर, मेनी, मच और अ लिटिल। सिंपल सी बात है, टी इज अ अनकाउंटेबल नाउन, और जब भी अनकाउंटेबल नाउन होगी तो आपको याद रखना है कि मच का यूज आपको करना है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे कि द सर्वेंट डिड नॉट मेक मच टी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 48, डैश देयर इज अ लाइफ देयर इज अ होप। जहां चाह है वहां राह है। तो इट इज वेरी इजी, वी हैव 3 ऑप्शंस हियर, इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज। आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ पर एज लॉन्ग एज का यूज करना है, क्योंकि जब भी ड्यूरेशन को शो किया जाता है तो एज लॉन्ग एज का प्रयोग किया जाता है। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 49, मोहन इज सिटिंग डैश राम एंड श्याम। वी हैव 3 ऑप्शंस हियर, बिटवीन, अमंग एंड अगेंस्ट। तो सिंपल सा रूल है यहाँ पर, जब 2 लोगों की बात की जा रही होगी तो बिटवीन का यूज किया जाता है, और मोर देन 2 होता है तो अमंग का यूज किया जाता है। सो वेरी सिंपल, हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, मोहन इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, क्योंकि 2 पर्सन्स की यहाँ पर बात की जा रही है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50, क्षितिज प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे आपको इसे चेंज करना है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि ये कौन से टेंस में दिया हुआ है। तो ये सेंटेंस जो है यह प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ है। अब आपको इसको चेंज करना है पास्ट सिंपल में। तो क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, वेरी सिंपल, सबसे पहले तो वर्ब को चेंज कर दो, सेकेंड फॉर्म में ले जाओ। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, आंसर होगा क्षितिज प्लेड क्रिकेट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 51, राम किल्ड रावण। यहाँ पे आपको चेंज करना है वॉइस। सिंपल सी बात है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहचान लो और सब्जेक्ट पहचान लो, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो राम इज सब्जेक्ट हियर एंड रावण इज ऑब्जेक्ट हियर। सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो सिंपल है, सेकेंड फॉर्म दे रखी है, तो ये पास्ट का कौन सा है, सिंपल है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर किल्ड जो है वो चेंज हो जाएगा वॉज किल्ड में। तो आंसर क्या बनेगा आप लोगों का, राम वॉज किल्ड बाय रावण। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर फिर से आपको जंबल वर्ड्स दे रखे हैं जो कि आगे पीछे लिखे हुए हैं, और आपको इन्हें रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो मैंने आपको 3 रूल्स बताए। सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानो, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखो, और देन उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको लिख दो। ठीक है, सो नाउ हियर योर आंसर विल बी दे हैव बॉट अ न्यू कार। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, टॉक प्रॉपरली, आई शेल बीट यू, कंबाइन यूजिंग अदरवाइज। अदरवाइज के साथ इसको जोड़ना है। देखिए रूल नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। इफ यू डोंट टॉक प्रॉपरली देन you will find the result. So answer will be talk properly, otherwise I shall beat you. Okay, now the next question, question number 54, to find error in others is easy, rewrite the sentence beginning with it. Now very easy rule, पहले भी सेंटेंस को आई थिंक मैं बता चुका हूं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आंसर होगा it is easy to find errors in others. Dear students, now the question number 55, Shiba cooked food and the instruction is change into negative sentence. सबसे पहली बात तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है, तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल का है। ठीक है, ओके, तो पास्ट सिंपल में आपको ध्यान रखना है कि डिड नॉट का यूज करते हैं जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं।
तो हमारा आंसर क्या होगा? शिबा डिड नॉट कुक फूड। द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सो देट का यूज़ करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वेरी को रिप्लेस कर दो सो से, और देट के साथ में सेकेंड सेंटेंस को मर्ज कर दो। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? आपका आंसर होगा द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। Dear students, all the best for your examination, and hopefully this video will be informative for you. Stay tuned for the next video, and thank you for watching this video.